Good morning, student, class 12th. Student, I hope you are enjoying video lecture, and due to some technical problem, the students in last class were not able to send you a video lecture. Only PDF is sent, in which events of fertilization is noted. Students, events in fertilization में चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। PDF की हेल्प से आपने नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन सम डिस्कशंस आल्सो रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन में 3 इवेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, 3 इवेंट्स में पहला इवेंट्स आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड इवेंट्स आपका फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इज द phenomena which include before fertilization। फर्टिलाइजेशन के पहले की जितनी भी फिनोमिना है वो सभी प्री फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करी जाती है। और सेकेंड स्टेप आपका फर्टिलाइजेशन, थर्ड स्टेप आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, आज की जो हम लोग की क्लास है वो बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन पर बेस्ड है, लेकिन इसके पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व है, गैमीट्स का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में आपने लिखा होगा गैमेटोजेनेसिस इज द फिनोमेना ऑफ, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ formation of gametes in either male or female. In case of male, the gametogenesis is called spermatogenesis, and in case of female, gametogenesis is called oogenesis. What is spermatogenesis? Phenomena of formation of sperm in male is called spermatogenesis, and phenomena of formation of ovum in female is called oogenesis. Both phenomena of spermatogenesis and oogenesis takes place with the help of meiosis type of cell division, in which these gametes are produced by the gametogenesis phenomena, sperm formation and ovum formation with the help of gametogenesis. Now some structure of sperms and ovum is also included in this topic. So if you remember in class 10th, I were already explained the sperm, diagram of sperm and all the structure which are present in the sperm, which again revise in this class. So it is not required to explain the structure of sperm and ovum, which were already studied by you in class 10th level. Students, 10th के लेवल में हमने ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। फुल एक्सप्लेनेशन हमने स्पर्म का आपको वहाँ पे बताया था, ओवम का बताया था। तो यहाँ पे उसको बेसिक नीड उसकी है नहीं, नीड उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हम ही ने बताया था। तो वो रिवाइज आप कर लीजिए। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्टूडेंट्स, Pre-fertilization also include gamete transfer.
First phenomena is gametogenesis and second phenomena of pre-fertilization is gamete transfer, that means transfer of sperm from male body to female body is called gamete transfer, which is taking place during the intercourse between male and female. When male and female are coitus with each other, then fusion of sperms and ovum takes place. So if you remember the diagram of ovary in class 10th level, then where I was already explained this topic, how sperm reaches into the oviduct of the female and how fertilization takes place. So student, gamete transfer is the phenomena of transferring of male gametes into the female body and reaches to the ovum. Now the second step is fertilization. Fertilization is also called syngamy because of fusion of male and female gametes takes place with the help of syngamy. In some members of animals, it takes place with the help of conjugation, for example protozoa, and in protozoa some member shows conjugation, that is पैरामीशियम, जो लास्ट क्लास में हम आपको बता रहे थे। पैरामीशियम में कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू पैरामीशियम का जेनेटिक मटेरियल एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दिस इज़ द गैमेट ट्रांसफ़र which takes place from one organism to another organism. फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस और पार्थिनोजेनेसिस, ये दोनों फिनोमेना है स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, मेल और फीमेल स्पर्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है विच इज़ अ सिंगल सेल बट डिप्लॉयड इन नेचर, एंड दिस जाइगोट इज शिफ्ट फ्रॉम ओविडक्ट टू यूटेरस ऑफ द फीमेल बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ देयर नेक्स्ट डेवलपमेंट. These developmental stages of zygote into young ones is called embryogenesis. Embryogenesis is actually the formation of embryo. Embryo is the multicellular structure. Whenever in zygote mitosis takes place, then or cleavage takes place, then it converted into multicellular structure. It is become 8-celled, 16-celled, 32-celled, 64-celled and multiples of cells, then it is called embryo. After embryo formation, there is including some developmental stages, that is blastula, morula, blastula and gastrula. These are the developmental stages of embryo. Finally, it converted into young ones. So students, ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। मोरुला की स्टेज, ब्लास्टुला की स्टेज, जो हम लोग 3rd चैप्टर में इन सारे सबके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम लोग केवल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसका केवल ओवरव्यू इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्लांट के बारे में और 3rd चैप्टर में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि मोरुला
कितनी सेल्ड स्टेज होती है, ब्लास्टुला कितनी सेल्ड होती है और ब्लास्टुला कितनी सेल्ड होती है, और यंग वंस फाइनली कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्टूडेंट्स। इसके पहले जो गैमीट ट्रांसफ़र है, गैमीट ट्रांसफ़र फिनोमेना जो प्री फर्टिलाइजेशन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, प्लांट के केस में जो गैमीट ट्रांसफ़र की फिनोमेना है वो पॉलिनेशन की हेल्प से कंप्लीट होती है। पॉलिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from male flower to the female flower or from stamen to the ovary of the flower. So it is pollination in case of plant which may be of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination is characteristic phenomena of what? Bisexual flower, and cross pollination is present in both condition, bisexual condition and unisexual condition, दोनों condition में present है, लेकिन most probably self pollination takes place in bisexual flower। स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट टाइप के एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स। These pollinating agents play very important role in the transfer of pollen grains from one flower to another flower. So on the basis of these pollinating agent, cross pollination takes place with the help of these pollinating agent, and on the basis of different pollinating agent involved in the cross pollination categorized basically into 3 parts, that is part में क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, बाय विंड एंड बाय वाटर। बाय इंसेक्ट, बाय विंड and by water. By insect, the cross pollination is called entomophily. It is called entomophily. By wind is called anemophily. And by water is called hydrophily. By water is called hydrophile. So these 3 type of cross pollination involve on the basis of involvement of numerous pollinating agent. Cross pollination categorized into 3 groups: entomophily by insect, anemophily by wind, and hydrophily by water. So students, now coming on the parthenogenesis. Some students require to explanation of parthenogenesis. कुछ students के क्वेश्चंस भी पार्थिनोजेनेसिस के ऊपर थे स्टूडेंट्स। तो चलिए पार्थिनोजेनेसिस हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। पार्थिनोजेनेसिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। सो parthenogenesis is actually phenomena of development
without fertilization. Students, when an unfertilized ovum develop into a new organism, जब कोई अनफर्टिलाइज ओवम एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है तो इसी को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जो केवल प्लांट में अवेलेबल है। एनिमल में कुछ इंसेक्ट हैं जिनमें ये फिनोमेना प्रेजेंट है, वो हम लोग 3rd चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स। वहाँ पे कुछ इंसेक्ट जैसे हनी बीज वगैरह हैं स्टूडेंट्स। तो हनी बी में आपने देखा होगा कि हनी बी के 3 कैटेगरी प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपका क्वीन होती है, एक वर्कर होते हैं और एक ड्रोन होते हैं। तो उसमें से जो ड्रोन वाले स्टूडेंट्स, जो ड्रोन के मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पार्थिनोजेनेसिस को शो करते हैं। लेकिन जो फिनोमेना पार्थिनोजेनेसिस की है वो प्लांट में ही अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। ओनली फीमेल गैमीट्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, या ये कह लीजिए अनफर्टिलाइज ओवम जो होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। इट इज़ एक्चुअली हैप्लॉयड इन नेचर। ये जो पार्थिनोजेनेटिक मेंबर होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के हैं, मोनोपेरेंटल एंड हैप्लॉयड। मोनोपेरेंटल क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हुआ, दैट इज फीमेल गैमीट्स ही ग्रो कर गया न्यू ऑर्गेनिज्म में, और वो भी हैप्लॉयड नेचर का होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, ये आपका अब पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 टाइप की है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल जो पार्थिनोजेनेसिस है स्टूडेंट्स, वो हनी बी में पाएगी। जो नेचुरली इसमें हनी बी में जो अभी हम आपको बता रहे थे, हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, एपिस इंडिका, जिसमें स्टूडेंट्स 2 टाइप ऑफ एग्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। यहाँ पे 2 टाइप का हनी बी के केस में स्टूडेंट्स 2 टाइप के एग्स बनते हैं, फर्टिलाइज एग्स और अनफर्टिलाइज एग। तो स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइज एग्स से जो हनी बी डेवलप होती है उसको हम लोग क्वीन बोलते हैं। जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज एग्स से डेवलप होती है। फर्टिलाइज एग से आपकी क्वीन डेवलप होती है स्टूडेंट्स। एंड स्टेराइल जो वर्कर फीमेल होते हैं, वर्कर फीमेल जो होती है वो आपका अनफर्टिलाइज। तो ये नेचुरल जो पार्थिनोजेनेसिस की फिनोमेना है स्टूडेंट्स, वो हनी बी में पाई गई। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस जो होती है स्टूडेंट्स, द अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू ड्रोन। अब ये वर्कर जो है अनफर्टिलाइज हैं जो बाद में ड्रोन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हनी बी की आपने देखा, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। तो वर्कर जो होते हैं वो भी अनफर्टिलाइज और ड्रोन भी अनफर्टिलाइज स्टूडेंट्स। ये जो वर्कर होते हैं स्टेराइल फीमेल्स व्हेन bead and mixture with pollen with nectar. So these 3 category of queen, worker and drone found in Apis indica, that is honey bee only.
is formed from fertilized egg and worker is formed from fertilized egg, whereas drone is unfertilized egg. नेचुरल आर्टिफिशियल फिनोमेना में स्टूडेंट्स ये पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप की है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये दो टाइप की पार्थिनोजेनेसिस, इंडियन स्नैक में कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है और हनी बी में इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल स्नैक और इसका एग्जाम्पल हनी बी। तो स्टूडेंट्स ये पार्थिनोजेनेसिस आपने देखा, इसके बारे में कंप्लीट नोट हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सेंड करेंगे, तो उसमें इसका और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सेकेंड चैप्टर। ओके, थैंक यू।